कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Jaya Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Jaya Radhe. Jaya Radha Madhav Radha Madhava Jaya Radhe.
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रपाद की जय। कार्तिक मास की जय, की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. And thank you everyone for joining for the class today. We have with us our own Brajendra Krishna Prabhuji from Ujjain. प्रभु जी आज हमें फिर से मिल रहे हैं हमारे 4th सेशन में। लास्ट सेशन में प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें कैसे फीडबैक को लेना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर मूड टू एक्सेप्ट द फीडबैक। एंड लेट अस वेलकम प्रभु जी once again by chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Over to you, Prabhuji. And welcome, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Okay, so we will start with Mangalachara. Om Gyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpatikamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sakdatam Sakradamnatam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Paditanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badam Sagaralita Shri Vishakhantam Namo Vishnu Badaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharini Nirvishesh Shunyavadi Pashyadeshtarni Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Kartuse Namah He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapt Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishibhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalparubhasha Kripasundubhevcha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. तो अभी हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हमने रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की थी। वो एक बेसिक जनरल क्लास थी जिसमें किस प्रकार से हमारे रिलेशनशिप से क्या-क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक्चुअली पूरा वेस्टर्न एटिकेट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। जितने ज्यादा हम इन एटिकेट्स को फॉलो कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमारी रिलेशनशिप में स्वीटनेस बनी रहेगी। जैसे करेक्टिंग अदर्स, अगर उल्टे तरीके से करेक्ट कर दिया तो रिलेशनशिप भी स्टार्ट होगी। एक्सेप्टिंग करेक्शन, सही से करेक्शन नहीं लिए तो भी रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं सारे बेसिकली रिलेशनशिप को ही सेंटर रखते हुए ये दे विल बी यूजफुल। तो सिमिलरली आज का टॉपिक जो मैं सोचा डिस्कस करूंगा वो है हाउ नॉट जंपिंग इनटू कंक्लूजंस इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। रामेश्वर गौरांग प्रभु, हमने ये टॉपिक गुड़गांव में पहले भी डिस्कस किया था जब मैं आया था 8-9 महीने पहले। नहीं प्रभु जी। ओके ओके, देन आई थिंक दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो ये एक्चुअली डिवोटीज में, अच्छे डिवोटीज में भी ये मैनेजरियल डिफेक्ट पाया जा सकता है। कौन सा मैनेजरियल डिफेक्ट? कि चीजों को प्रॉपर एनालिसिस ना करते हुए कंक्लूजन्स पे जंप करना। तो इसमें बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे सबसे ज्यादा इन चीजों का रियलाइजेशन मुझे 2016 से हुआ, जब मैं
मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हुआ कि किस प्रकार से 2 अच्छे भक्त हैं, 2 अच्छे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे हैं, अच्छी साधना है, मंगल आरती करते हैं, बढ़िया 16 माला का जप भी अच्छे से करते हैं, परंतु उसके बाद भी एक-दूसरे को समझने में गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्लैरिफिकेशन ना होकर के कंक्लूजन्स पे ज़्यादा ज़्यादा जंप करते हैं। कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स से भी मैं इस कांसेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा। साथ ही साथ में ये 3 बकेट एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। क्या है 3 बकेट एनालिसिस? राइट बकेट, रॉन्ग बकेट, नॉट श्योर बकेट। ये 3 बकेट एनालिसिस हमें केवल रिलेशनशिप में नहीं बल्कि सभी जगह यूज़ होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब भागवतम पढ़ता हूँ तो मैं वहाँ पे पढ़ता हूँ कि किस प्रकार से चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ वाइफ़्स थी और एक भी सन नहीं था। तो मेरा सिर चकराना शुरू हो जाता है। कैसे इस चीज़ को समझे हम? 1 करोड़ वाइफ़ समझ सकते हैं मतलब हमारे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ही करीब 5.5-6 करोड़ है। हाँ, तो इस प्रकार की अब ये इसको मैं राइट बकेट में डालने में मुझे मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैं फिर इसको नॉट श्योर बकेट में डालूँगा। ओके, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस, आई कैनॉट माय स्मॉल माइंड कैनॉट डाइजेस्ट दिस इन्फॉर्मेशन, ओके लेट मी कीप दिस इन द नॉट श्योर बकेट। आई कैनॉट पुट इट इन द रॉन्ग बकेट अदरवाइज़ इट विल बी ऑफेंस। कोई चीज़ मुझे भागवतम में दी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, आई कैनॉट पुट इट इंटो रॉन्ग बकेट। भागवतम में लिखा जाता है किस प्रकार से हमारे 7 प्रकार के समुद्र होते हैं। ठीक है भाई, खारे पानी का समुद्र तो ठीक है, अभी शुगरकेन जूस का समुद्र अच्छा, हनी का, शहद का समुद्र अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, तो शराब का समुद्र ऐसे-ऐसे समुद्र हैं, फिर कैसे डाइजेस्ट करेंगे? तो उसको उठा करके नॉट श्योर बकेट में डाल दिया। तो ये रिलेशनशिप्स में भी, इन्फॉर्मेशंस में भी प्रभुपाद का कोई पास टाइम जैसे श्रील प्रभुपाद का एक पास टाइम है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक कोई एक्टिविटी उनको कुछ समय पहले समझ में नहीं आया था। जब आश्रम में एक बार स्कॉर्पियन एक बिच्छू आ जाता है और उसको उसको जब भक्त लोग मार रहे रहते हैं तो उस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ नहीं बोलते हैं, रोकते भी नहीं हैं। तो बाद में फिर श्रील प्रभुपाद काफ़ी सालों बाद में जब पढ़ते हैं भागवतम में किस प्रकार से saintly people also do not feel pain when they see some envious people or envious creature gets hurted or get killed. तो जाकर के श्रील प्रभुपाद को वो डाउट क्लियर होता है। प्रभुपाद जी उस परपोर्ट में लिखते हैं। तो दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ज्यादातर लोग तो जीवन में 2 ही बकेट लेकर के चलते हैं, या तो फिर सही है या तो फिर गलत है। वो नॉट श्योर बकेट के बारे में मालूम ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमारे आपसी रिलेशनशिप में भी वैष्णवों की भी कोई एक्टिविटी अगर हमको नहीं समझ में आ रही है तो उसको गलत ना कंक्लूड करें बल्कि नॉट श्योर में डाल दें, क्लैरिफाई करें, दैट विल बी वेरी वेरी वाइज। अदरवाइज क्या होता है कि 2 अच्छे रिलेशन भक्तों के भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए जैसे बाली और सुग्रीव थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र, दोनों दोनों भाइयों में बहुत अच्छी मित्रता थी। परंतु जिस समय वो किसी राक्षस ने अटैक किया, बाली लड़ता हुआ गुफा के अंदर प्रवेश कर दिया। 1 महीने तक सुग्रीव गुफा के बाहर खड़े रहे, बाद में देखा गुफा के अंदर से खून की धारा बाहर निकल कर के आ रही है। उनको लगा हो सकता है बाली ही मर गया होगा क्योंकि राक्षस की चीखने की आवाज़ आ रही है और बाली की चीखने की आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। सो इन दैट वे ही कंक्लूडेड, उन्होंने बड़ा-सा पत्थर लेकर के गुफा का मुँह को बंद कर दिया। बाद में बाली ने क्या सोचा? बाली ने सोचा सुग्रीव जो है राज्य अधिकार चाहते हैं इसलिए मुझे बंद करके चला गया। क्लैरिफाई किया? नहीं किया, कंक्लूड किया, नेगेटिव कंक्लूड किया। उस वजह से क्या हुआ? पूरा बाली ने पूरे सुग्रीव को तो वहाँ से मारने का प्रयत्न किया, भगा दिया, उसकी वाइफ से भी शादी कर ली। बाद में क्या हुआ? रामचंद्र भगवान ने जो कि सुप्रीमली टॉलरेंट, सुप्रीमली मर्सिफुल, सुप्रीमली कंपैशनेट उनको भी बाली की हत्या करनी पड़ी। चीज़ की चीज़ों की ओरिजिन कहाँ से हुआ था बेसिकली? Because he concluded that Sugriva is a defaulter. Bali concluded that Sugriva is a defaulter. He tried to put me inside the cave. तो क्लैरिफाई नहीं किया, कंक्लूड किया। हमारे आश्रम के एक बहुत ही सीनियर भक्त हैं, उनके साथ में मैं पुणे गया था, 2012 की बात है। तो वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल वैष्णव हैं और काफ़ी उनकी डीलिंग्स भी एकदम अच्छी रहती हैं। मैं उनके साथ बैठ कर के प्रसाद ले रहा था। तो पुणे मंदिर का प्रसाद भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ध्यान देते हैं राधे श्याम प्रभु की अच्छी क्वालिटी का प्रसाद बने। फर्हान प्रभु ने तो चौपाटी की चीज़ को आईएसओ स्टैंडर्ड तक उठा दिया है। तो पुणे का प्रसाद बहुत बढ़िया था और वहाँ पे मैं उनके बाजू में ही बैठ कर के प्रसाद ग्रहण कर रहा था। तो एक-एक करके आइटम्स आए, दाल, चावल, सब्जी वगैरह बहुत बढ़िया से सब कुछ। दाल तो एकदम ही स्पेशल दाल थी। खटी-मीठी दाल थी, वैसी दाल शायद ही मैंने उसके पहले खाई होगी।
तो मैं देखा अच्छा प्रभु जी ने भी दाल पूरा भर करके लिया कटोरी में, और उसके बाद में मैं देखा कि प्रभु जी ने टेस्ट तो किया दाल, उसके बाद फिर इन्होंने जो है दोबारा फिर चखा नहीं। मेरे को लगा हो सकता है बंगाली कल्चर हो सकता है लास्ट में खाते हो, बंगालीज में दाल लास्ट में पीते हैं हम लोग। मेरे को लगा हो सकता है इट बी लाइक दैट, बट लास्ट में देखा कि इन्होंने तो जाकर के सीधा का सीधा पूरा दाल जो है डस्टबिन में डाल दिया। तो मुझे थोड़ा खराब लगा कि मतलब ये तो काफी सीनियर है, वरिष्ठ वैष्णव है, इनको तो प्रसाद को इस प्रकार से नहीं छोड़ना चाहिए करके। दाल थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ा कम ले सकते थे अगर इनको ऐसा था कि अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं है, और एक्चुअली दाल वाज वेरी टेस्टी, रियली वेरी टेस्टी। तो फिर इस प्रकार से मेरे मन में एक अपराध भाव उनके प्रति जनरेट हो रहा था कि अच्छा भक्ति में तो इतने लंबे समय से, अच्छा क्या है मेरी मदर ने मुझे शुरुआत से बहुत एक स्पेसिफिक आदत डाली थी कि थाली से कुछ नहीं छूटना चाहिए। थाली से कुछ नहीं छूटना चाहिए, लास्ट तक खिला करके छोड़ती थी। उस कारण से क्या बचपन से ही 5-6 साल से ये आदत कल्टीवेट थी कि थाली में से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो सेंस में ये बचपन की आदत डली हुई थी, तो मुझे मेरे मन में थोड़ा-सा अपराध भाव ऐसा चल रहा था कि क्यों इन्हें कर दिया? फिर मैं सोचा चलो इनसे ही क्लैरिफाई कर लेते हैं, इनको ही बता देते हैं कि प्रभु जी आप अपराध से मुक्त कीजिए। मैंने उनसे पूछा एक्चुअली, प्रभु जी दाल आपको अच्छी नहीं लगी क्या? बोले नहीं, नहीं बहुत टेस्टी थी। हमने कहा अच्छा। फिर तो और डाउट बढ़ गया। प्रभु जी आपने वो दाल जो थी वो आपने छोड़ दी प्रभु जी? बोले हाँ, एक्चुअली मैं क्या करता, एक्चुअली दाल में तो खटमिठी दाल थी, दाल में मीठा डला हुआ था और मैं शुगर पेशेंट हूँ। एज़ अ शुगर पेशेंट मैं मीठी दाल नहीं खा सकता। दाल बहुत टेस्टी थी और दाल में कभी जनरली कोई शक्कर डालता नहीं, इसलिए मैंने पहली बार में ले ली। जैसे हमारे मंदिर में कभी लोग दाल में शक्कर नहीं डालते हैं, दाल नमकीन ही रहती है। तो इन दैट डिफ़ॉल्ट कंक्लूजन ही टूक दाल। बाद में देखा दाल में शक्कर है एंड ही इज़ अ शुगर पेशेंट, दैट्स व्हाई ही हैड टू थ्रो। मैंने कहा मुझे खुद जो है वो दाल फेंकते हुए बहुत कष्ट हो रहा था। अब मैं अपनी जूठी दाल किसी को दे भी नहीं सकता और फेंकने में मुझे भी कष्ट हो रहा था। तो इस कारण से मैंने भगवान से क्षमा माँगते हुए इस दाल को अस्वीकार किया। मुझे लगा अरे बाप रे! मैं तो हो सकता है इनको गलत समझता और बल्कि 4 लोगों को और भी बताते कि अरे आप लोग ऐसी बात करते हो, हमने देखा है अपनी आँखों से क्या सत्य है, क्या गलत है। So in that way we can be thoroughly confident of what we see and what we hear, but we may not be always right. तो इसीलिए एटलीस्ट वैष्णव समाज में हमको जो है एक बेनिफिट और डाउट हमेशा देना चाहिए। अभी आप देखिए क्रिकेट का एग्जांपल हम लोग देते हैं। क्रिकेट में अगर अगर जो थर्ड एम्पायर है, पहले तो फर्स्ट एम्पायर से पूछा जाता है अगर रन आउट का केस रहता है तो। उसको अगर समझ में नहीं आता तो तुरंत इस प्रकार से थर्ड एम्पायर की तरफ बोल देता है कि भाई आप देख करके बताइए। थर्ड एम्पायर को भी अगर समझ में नहीं आता है कि पहले बॉल ने स्टंप को हिट किया कि पहले बैट्समैन ने क्रीज को टच किया, वो बेनिफिट और डाउट देते हुए बैट्समैन को नॉट आउट करार कर देता है। जिन लोगों ने क्रिकेट देखा होगा आप जानते होंगे। In the similar way, while dealing with the Vaishnavas, we should always have that space that we are giving the benefit of doubt to the Vaishnavas, not directly jumping into conclusion. नहीं तो क्या होगा कि अननेसेसरली हमारे रिलेशनशिप में स्ट्रेन्स आते हैं। अभी अभी रिसेंट की बात है, कुछ कुछ दिन पहले ही एक हमारे ही जो बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने हमारी जो मैनेजरियल कमिटी है, उसमें एक भक्त को कन्फ्यूजन हुआ। क्या कन्फ्यूजन हुआ कि मैं जो है दिन भर जो है साधन भजन में ही लगा रहता। तो उनको उनका क्या एक कंप्लेंट था कि ठीक है आपका इंक्लिनेशन डीटी वर्शिप के लिए अच्छा है, आप सुबह सुबह 2 बार, 2 शाम को 1 बार डीटी वर्शिप के लिए 3 बार जाते हैं, आपको उसमें 4.25 घंटे के आसपास आपका जाता है। दैट इज़ ओके। आई एप्रिशिएट योर स्पिरिट ऑफ वर्शिपिंग द डीटीज़। ओके, आई एप्रिशिएट योर साधना, आप सुबह जल्दी उठ जाते हो। बट व्हाट अबाउट द सर्विसेज़? Guru Maharaj gave you the responsibility of a manager, of a temple president. Are you really fulfilling that responsibility? Are you really taking that managerial load? कि बस आप प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठ कर खाली साधन भजन करोगे, भागवतम पढ़ोगे, चैंटिंग एक्स्ट्रा करोगे, कार्तिक का महीना है, इसके लिए 3-3 बार आप ऑल्टर के पास जाने के लिए आपको समय है। परंतु who will play the role of a manager? Who will play the role of a president? Good question. I was not I was not uh, I didn't felt bad बिकॉज़ थोड़ा मिस्टेक उनके पार्ट में था, थोड़ा मिस्टेक मेरे पार्ट में था। कैसे? आई वाज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द डे बट आई वाज़ नॉट अकाउंटेबल। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कम थी। तो सुबह से लेके शाम तक तो मैं काफ़ी कुछ मैनेजरियल सर्विसेज़ में भी इन्वॉल्व था। डिपार्टमेंट हेड्स के साथ मीटिंग कर रहा था, उनकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर रहा था। कुछ भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ रही थी, उसको भी डील कर रहा था। अलग-अलग माध्यम से दिन भर में बिज़ी था। बल्कि उनको मैंने कहा कि प्रभु मैं तो
एक्स्ट्रा राउंड स्टैंड भी नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ कि मेरे पास गिनती की 16 माला ही है सुबह से लेके शाम तक करने के लिए। वैसे सुबह 14 माला हो जाती है आस-पास, पर मैं जानता हूँ कि मुझे 16 माला से ज़्यादा टाइम नहीं है चैंटिंग करने का। और बुक रीडिंग में एवरेज मेरा आधा पौन घंटा, 1 घंटे ज़्यादा भी नहीं हो पाता है। और हियरिंग तो मैं पैरेलल हियरिंग करता हूँ, क्योंकि बैठ कर के लेक्चर सुनने का तो समय ही नहीं है मेरे पास में। क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको रिज़ॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बट आई वाज़ नॉट अकाउंटेबल टू व्हाट आई एम डूइंग। तो फिर मैंने क्या किया, 3-4 पिछले 4-5 दिनों में ही मैंने जो भी मैं करता था, रात में 10 से 15 मिनट निकाल कर के मैंने जो कुछ सर्विसेज़ की हैं उनको वन लाइनर्स के रूप में मैं एड्रेस कर देता था। गौशाला, दिस इश्यू केम एंड in this way we resolved it by having a meeting with this person. So in that way, just by being accountable, I could produce appreciation in their eyes. अब उनको पता चल रहा है कि मैं केवल साधना नहीं बल्कि सेवाएँ भी कर रहा हूँ। तो 3 से 4 दिन में उनका पूरा व्यू पॉइंट जो है वो बदल गया। क्योंकि दिन भर में जितने सारे पॉइंट्स को मैं नोट डाउन करके लाया और जितनी सारी चीज़ें मैंने जो की उनको मैंने लिस्ट आउट किया, हिज़ होल विज़न चेंज्ड एक्चुअली। तो एक पार्ट मेरे था कि आई वाज़ लेस अकाउंटेबल। व्हाट वाज़ हिज़ मिस्टेक? ही डायरेक्टली जंप्ड इंटो कंक्लूजन विदाउट क्लैरिफिकेशन। करेक्ट? अगर वो मेरे से डिस्कस ही नहीं करते तो उनका ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप होता रहता कि हाँ ठीक है, इनको तो खाली साधन भजन में इंटरेस्ट है, ये तो बेसिकली जो इनकी जो अलॉटेड सर्विसेज वो नहीं कर रहे हैं। बट वाज आई नॉट डूइंग माय सर्विस? आई वाज डूइंग, बट देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप, देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग। So in that way, it's very, very important that before we conclude, we should clarify. क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी भक्ति तत्व से आकर्षित होते हुए ही तो आते हैं। सो इन दैट वे देयर आर लेस चांसेस दैट दे विल बी टोटली इनसिंसियर। कुछ इनसिंसियरिटी तो सभी के अंदर रहती है, बट वी कैन नॉट थिंक दैट दे आर टोटली इनसिंसियर। क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति बहुत कुछ कमिटमेंट्स लेते हुए आगे चल रहा है। सो बट ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं। बड़े-बड़े डिवोटीज़ में जैसे कोई 2 भक्त हैं, जिनने 20-20 साल कृष्णा कॉन्शियस में बिताए हुए, पर उसके बाद भी डिफरेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपस में कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया। क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड होती है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग है फिर पहाड़ बन जाते हैं। एक इतना बड़ा पहाड़, एक दूसरा इतना बड़ा पहाड़। अब उनको उनको इरेडिकेट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एटलीस्ट जिन लोगों के साथ में हम वाक़ई अच्छी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उनके साथ में तो क्लियर करते हुए चलना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। Otherwise, like we become the loser. The truth can always be far beyond our perception. एक बार एक ट्रेन में कुछ सज्जन जा रहे थे और सामने वाली सीट में एक करीब 20-21 साल का लड़का जो है वो बैठा हुआ था, खिड़की वाली सीट में, विंडो सीट में। और वो देख रहा था बड़े-बड़े बहुत ही आश्चर्यजनक दृष्टिकोण से बाहर की चीज़ों को देख रहा था। और इसके बाद में कभी उड़ता हुआ पंछी देखता तो बाजू में बैठे पिताजी से बोलता, पापा पापा ये क्या है? पिताजी बोलते ये पंछी है। फिर देखता कि पहाड़ कुछ निकला है तो पूछा था, पापा पापा ये क्या है? तो बोलते थे पहाड़ है। फिर कोई नदी देखा तो बोला ये क्या है? तो बोले ये नदी है। सामने बैठे हुए व्यक्तियों को लगा कि ये बच्चा तो पागल है। क्यों? क्योंकि 20-21 साल में इसको पेड़, पंछी, पहाड़, नदी यही नहीं क्लियर है। तो बेसिकली लगा कि ये तो मैड है। तो उन लोग ने बड़ी जोकिंग में पूछा कि भाई साहब आप इसको कौन से पागल खाने से बाहर निकाल कर के ला रहे हैं? तो उन सज्जन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं इसको पागल खाने से नहीं, नेत्र चिकित्सालय से वापस ला रहा हूँ। 20 साल तक ये अंधा था, अभी जाकर के इसकी आँखों की रोशनी आई है। ये पहली बारी चीज़ों को देख रहा है इस प्रकार से। तो इसको नहीं मालूम कि ये पहाड़ है, कि ये पेड़ है, कि ये पंछी है। पहली बारी देख रहा है तो इसके लिए कृपया कर क्षमा करें। तो people who raised this objection in a mocking way when they asked in a humorous way when they asked कि क्या इसको पागल खाने से निकाल के ला रहे हैं, उनको बहुत खराब लगा। We jumped into a negative conclusion. We end up disappointing someone who was innocent at heart. क्या कर सकते थे बेसिकली? उनको उनके सामने वाले बच्चे की एक्टिविटी नहीं समझ में आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, वो पूछ सकते थे। दैट वुड हैव बीन द मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर कि भाई साहब लड़का तो आपका 20-21 साल का है, ये इसको पेड़, पहाड़, पंछी, नदी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऐसा कैसे? दैट वुड हैव बीन अ बिहेवियर इन द मोड ऑफ गुडनेस। जो उन्होंने कंक्लूड किया दैट वाज़ इन द मोड ऑफ पैशन। तो इस प्रकार से द ट्रुथ कैन ऑलवेज बी फार बियॉन्ड आवर परसेप्शन। अभी उसी पुणे ट्रिप में जब मैं पुणे में गया था, तो मैं देखा
कि कितने तो चैंटिंग मेरी बची हुई थी, 6 माला मेरी करीब बची हुई थी। तो मैं रात में 8 बजे डिनर लेकर के घूम-घूम के मैंने सोचा कि चैंटिंग करता हूँ। पुणे मंदिर में ब्रह्मचर्य आश्रम अकोमोडेशन कम था, तो करीब 500 मीटर दूर पे ही कोई एक पुरानी बिल्डिंग थी, वहाँ पे उन लोगों ने हम लोग को अकोमोडेट किया था। हम लोग 5 से 6 ब्रह्मचारीज़ वाईपीटीसी यूथ प्रीचर्स ट्रेनिंग कैंप करने के लिए गए थे पुणे, जो कि 3 दिन का था। वहाँ पर हम लोग रुके, शाम को मैं 8 से साढ़े 8 बजे से चैंटिंग करना शुरू किया। अब मैं देखा कि किस प्रकार से एक ब्रह्मचारी जो हैं, वो एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं। क्लास तो मैं देखा किस प्रकार से एक ब्रह्मचारी जो हैं, वो जो हैं एक दरवाजे के अंदर जाते हैं। तो मैं देखा ना ठीक है, उनका हो सकता है कोई उनका भी कोई रूम होगा इस प्रकार से। A person can go inside a room, what's problem? उसके बाद फिर मैं देखा कि एक यंग माताजी भी अंदर जाती है दरवाजे से। मेरे को लगा अरे ऐसा कैसे? So I was completely confused that a brahmachari, saffron brahmachari is going inside a room and the same room and young Mataji is also going. And after some time I saw कि मैं फिर chanting करता रहा. फिर मैं देखा आधा घंटे के बाद में देखा कि both of them coming together. I was totally bewildered. How is it so? In Pune, such a good training and education system is there. How can we expect such a thing? फिर बाद में फिर मैं देखा कि उसमें से और भी फैमिली मेंबर निकल के आ रहे हैं, तो मेरे को लगा अच्छा इस घर है कि क्या है? तो देखा कि तो लिफ्ट है। बहुत पुराने ज़माने का लिफ्ट है। इट वाज़ नॉट द डोर ऑफ सम होम बट इट वाज़ अ लिफ्ट। और इतने पुराने ज़माने की लिफ्ट थी कि पहले उसमें पूरा दरवाज़ा खुलता था और बाद में फिर कुछ शटर सिस्टम था, तो उससे लोग ऊपर-नीचे जाते थे। तो दैट वाज़ द थिंग। अब सपोज़ कीजिए अगर चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती, तो आई वुड हैव कम टू कंक्लूजन दैट इन पुणे टेंपल ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टैंडर्ड। करेक्ट? So in that way, the truth can always be far beyond our perception. अभी हमको खुद अपने केसेस में देखना चाहिए कि कभी हम किसी के बारे में जज करते हैं, किसी के बारे में कुछ धारणाएँ बनाते हैं, तो कितने ज़्यादा हम क्लैरिफिकेशन पे ध्यान देते हैं या सीधे ही हम जो है कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं। 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइज़ बिकॉज़ ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी जो हमारे इस्कॉन की नेशनल लेवल्स की जो मीटिंग होती है, जिसमें आईसीसी मीटिंग है जैसे, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स, जनरल मैनेजर्स अटेंड करते हैं, उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से इस्कॉन इज अ वेरी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी एक्टिवली प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग के केसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। कारण क्या है इसका? लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। कितने कम लोग जो हैं वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का पार्ट बन पाते हैं। जो यूथ इस प्रकार से बेस सिस्टम या प्रीचिंग सिस्टम से आते हैं, उनकी तो ट्रेनिंग फिर भी हो जाती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डिवोटीज डू नॉट अंडरगो दिस सीरीज ऑफ ट्रेनिंग व्हिच इज एसेंशियल। देखिए, बाहर के लोग जो हैं वो तो थोड़ा समय मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के फिर वापस आ जाते हैं, ज्यादा कुछ प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, बस भगवान के दर्शन लेकर के वापस आ जाते हैं, दे इन्वॉल्व इन देयर ओन एक्टिविटीज। बट वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम हम वाकई उसके डीप में जाकर के हम कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी को समझने का, उसको एक्सप्लोर करने का, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे ऑलरेडी रिलेशनशिप बाहर की दुनिया से धीरे-धीरे कटते चले जाते हैं। बहुत ही कम लोगों के साथ में हमारा रिलेशनशिप बच जाता है। अब जिनके साथ रिलेशनशिप थोड़ा बचा है, उनके साथ ही अगर मनमुटाव हो गया, तो फिर चलेंगे कैसे हम? दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इस कारण से दीज़ सब्जेक्ट मैटर्स बिकम्स द मैटर ऑफ utmost importance, because as we learned previously, what we have is only each other. What we have is only each other. और जैसे ही हम आउटसाइडर से ज़्यादा फिर संबंध बनाते हैं या हार्ट शेयरिंग शुरू करते हैं, देन वी आर अगेन कैरिड अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। So that's why we need to have a center as Krishna and Vaishnava surrounding that center, keeping Krishna at the center, and that center is surrounded by the Vaishnavas, devotees. So in that way we will be very nicely sheltered in our Krishna consciousness. एक हर हर ग्रेस देवकी माता जी ने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है, शेल्टरिंग रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो शेल्टरिंग रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जो हैं उन्होंने इस प्रकार से शेयर किए। उन्होंने एक और बुक लिखी है, फॉल्स ईगो द कांस्टेंट कंपेनियन। उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स रिलेशनशिप को लेकर के आते हैं। बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, वी फाइंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। अभी देखिए, गाय जो है थोड़ी हम्बल स्पीशीज मानी जाती है,
ना। तो इस कारण से 2 गाय जो है, 3 गाय जो है, 4 गाय जो है आपस में फिर भी रह सकते हैं एक साथ में, एक ही गौशाला में रह सकते हैं। कुछ हम खाने की डालते हैं, ठीक है, हाँ 3-4 गाय मिल करके खा लेते हैं आराम से, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या है, गाय काऊ आर हम्बल इन नेचर। अब वहीं पे अगर हम लायंस की अगर बात करें या फेरोशियस एनिमल्स की बात करें, तो दे विल जस्ट फाइट एंड एक्सप्लॉइट ईच अदर। There is no question of living peacefully. So in that way, if we wish to remain with each other in joyful state of consciousness, very important that we accept and cultivate this Vaishnav Sadachar qualities. कभी हम रिस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, हाउ रिस्पेक्ट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ वी शुड हैव रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स। एक्चुअली जैसे हमने पहली क्लास में चर्चा किया था, respect, love and trust are the three pillars of any trustworthy relationship. Any good relationship, it should have 3 pillars. We should have respectful dealings with each other, respect, love and trust. So in that way, when we are very nicely sheltered in the association of Vaishnavas, then gradually, like the Krishna also accepts us, and then gradually the spiritual realizations comes in. What we are looking for actually, we are not looking for theoretical knowledge, वो तो किसी को भी मिल जाएगा. What we are really looking for are fresh, juicy spiritual realizations. एक प्रामाणिक भक्ति जो है वो साक्षात्कार की तरह ज्यादा अग्रसर है, ना कि जस्ट कोई theoretical knowledge की तरफ. theoretical knowledge आ गया, अभी उसको हमको digest करना है अपने service attitude के बदौलत, and then that theoretical knowledge will be converted into realization. Knowledge, understanding and realization are the 3 levels of understanding. Knowledge is just theoretical knowledge. Understanding is जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी चीज को, and realization is the topmost thing. So ultimately we are looking for that sweet realization to dawn in our heart as permanent reality. So I spoke for around half an hour. अभी तक के सेशन में किसी का कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड. कई बार लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशंस का समय कम पड़ जाता है और इन टॉपिक्स में एक्चुअली जितना ज़्यादा हम चर्चा करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे, दैट विल बी इवन गुड. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण. Prabhuji, I have one question. The last sentence you told us that 3 levels of what are the 3 levels in which you told knowledge, understanding, and realization? ये three levels of knowledge है basically. Knowledge is theoretical knowledge, that is we all know. उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया. उसको जैसे हाउ द लस्ट एक्ट्स है ना, कि वो ध्याय तो विषयां पुंसाम संगास्ते शोभजायते संगा समझायते कामांत क्रोधोभिजायते, वो 2.2 चैप्टर में 36-37 समथिंग वर्ड्स में आते किस प्रकार से ग्रेजुअली हाउ द लस्ट एक्ट्स. तो ये पूरा डिटेल में भगवान ने बताया उसमें. तो इस प्रकार से वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी किसी भी चीज को जब हम बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं. बट हो सकता है रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग तो पक्की हो गई, बट इसके बाद भी हमारे पास साक्षात्कार नहीं, रियलाइजेशन नहीं है. तो रियलाइजेशन जो है वो टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग है, और वो रियलाइजेशंस ही हमारे परमानेंट एसेट है जिनको हम प्राप्त करने का अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं. मुझे कौन सा वर्स बताया आपने, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? वो लस्ट के लिए तो सेकंड चैप्टर का था, 2.6667 है. कौन सा, एक मिनट में देख लेता हूँ. I think 62, 2.62. 2.62-63 है. Yes. ध्याय तो विषयां पुंसाम संगास्तेषु जायते संगा समझायते कामांत क्रोधोभिजायते. तो उसमें पूरा भगवान बताया फंक्शनिंग किस प्रकार से फंक्शन करती है लस्ट. तो ऐसे कूटम बीजम फलोन्मुखम प्रारब्ध अप्रारब्ध, जैसे हमको पता चलता है ऐसे कैसे लॉ ऑफ कर्म एक्ट करता है. कभी हम सिंफुली एक्ट करते हैं तो उसके 2 वेक्टर्स निकल जाते हैं, एक वेक्टर खाली नहीं निकलता कि उसका रिएक्शन मिलेगा, वो कूटम वाला भी निकल जाता है साथ में, सिंफुल इंक्लिनेशन भी. जैसे कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है, अब वो सोचता है मैं शराब नहीं पीऊंगा, फिर भी पी लेता है. तो 2 चीजें होंगी, एक तो उसको शराब पीने की वजह से जो भी सिंफुल रिएक्शंस हैं वो निकल करके बाद में परेशान करेंगे, दूसरा उसकी शराब पीने की प्रवृत्ति भी
x से x+1 स्तर पे पहुंच जाएगी। इसके लिए हमको हमेशा बचना चाहिए, किसी भी प्रकार की सिंफुल टेंडेंसीज है उनको खत्म करना चाहिए। तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई बेसिकली, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। पर रियलाइजेशन अभी नहीं आया, रियलाइजेशन विल कम लेटर, and Krishna will be pleased, when the devotees will be pleased, when they will be pleased, the blessings will naturally come from their heart, and that will turn knowledge into realization. That is the most important aspect. So that's why we are so inclined to serve devotees, to serve Krishna. लगे रहते हैं किस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न हो, डिवोटीज प्रसन्न हो, ताकि हमारे जितना भी नॉलेज कंपोनेंट है वो रियलाइजेशन रूपी असेट के रूप में हमारे पास आ जाए। ओके, विनोद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, आपने ऑन कर बताया सकते हैं कि- वीडियो आपका, तो एटलीस्ट आई विल नो। ओके प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि वी शुड बिहेव एंड आस्क क्वेश्चंस इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो ये समझ तो आ गया प्रभु जी, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें अपने जीवन में? जितना ज्यादा सुनते जाएंगे, जितना ज्यादा हमारा कन्विक्शन बढ़ता चला जाएगा, हाउ मूड ऑफ गुडनेस बिहेवियर इज गुड एंड हाउ इट इज एनलाइटिंग, किस प्रकार से मूड ऑफ गुडनेस में जितना ज्यादा हम एक्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा हम सुखी रहेंगे। The greatest of the pleasures is to be experienced with enlightened senses, not with the mundane senses. जितने ज्यादा हमारे सेंसेस प्यूरिफाई हो जाएंगे उतना ज्यादा हम आनंदित हो जाएंगे। ये शास्त्रों का मत है, ये सारे वैष्णवों का मत है। इस प्रकार से हम इसको कन्विक्शन के प्लेटफॉर्म में हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस सर्विसेज से करने से होगा, ये डिवोशनल सर्विस करने से। Yeah, devotional services are the only measure, and we get fuel, we get motivation for doing devotional services by associating with Vaishnava. So that is the key. Yeah. थैंक यू। मेघा माता जी का प्रश्न था क्या? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, हमें क्लियर करना चाहिए। तो लाइक सपोज किसी सीनियर के बारे में हमने कुछ सोचा, तो आई मीन हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहते, तो हम उनसे कैसे क्लियर करें? बीइंग अ सीनियर, हाउ वी कैन क्लियर विद देम? किसी सीनियर को लेकर ही हमारा डाउट है, तो मतलब सीनियर की एक्टिविटी को लेकर के डाउट है तो यस। हाँ, ये सिचुएशंस मेरे सामने भी मैं भी फेस करता हूँ। बेसिकली इसमें अगर हमारा उस सीनियर के साथ में इतना थिक रिलेशनशिप है कि वो माइंड नहीं कर देंगे, अगर हम कुछ पूछ भी लेंगे उनसे तो उनसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पर अगर हम कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि माइंड करें, हो सकता है पसंद ना करें, तो फिर कोई ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो कि उनके काफी क्लोज है, उनका भी वेल विशर है। So in that way, it can always work it out. We can always work it out in that way, going via medium of some devotee who is very close to him. What is the worst thing which happens? The worst thing which happens is when we spread the rumor without understanding it. So that is lack of honesty actually. अभी जैसे मैं और राधापाद प्रभु को आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, तो हम दोनों ने एक साथ ही जनवरी महीने में 2011 में ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था। ठंडों का समय था और कुछ समय बाद श्री गुरु महाराज ने हमको कहा था कि मार्बल अपार्टमेंट्स में लगाने के लिए आप लोग कटनी जा सकते हैं क्या? हमने कहा जरूर जाएंगे। तो हम लोग कटनी जाकर के वहां पर रुके, मार्बल सेलेक्ट किया, गुरु महाराज को फोटोज भेजे मार्बल के, गुरु महाराज को भी पसंद आए, मार्बल का लॉट सिलेक्ट हो गया। अभी एक दिन गाड़ी करे हम लोग, तो मतलब एक दिन गाड़ी बुक हो, पर गाड़ी वाला जो है वो ट्रक लाई ना, ट्रक से जो मार्बल शिफ्ट करना था कटनी से उज्जैन, तो इस प्रकार से हमको 6 से 7 दिन पेन लेते हुए वहां पे रुकना पड़ा, क्योंकि द ट्रक वॉज नॉट कमिंग। वो ट्रक उसे डिपार्टमेंट में ऐसे ही चलता है, वो लोग बोलते कुछ है और करते लेट है, तो उस कारण से तो एक हफ्ते बाद वहां से माल जो है लोड हुआ और चलना शुरू हुआ। हम लोग ट्रेन से यहाँ पे आ गए। यहाँ पर जब आए तो मार्बल जो है करीब 5% से 10% था मैक्सिमम टूट चुका था। ठीक है, इतना तो एक्सपेक्टेड भी है, इतने लंबे रास्ते से मार्बल आएगा तो थोड़ा तो टूटेगा ही। टूटा मार्बल, तो एक भक्त ने बताया कि अरे बहुत बहुत मार्बल टूट गया। बोले कितना टूट गया? बोले 20% टूट गया। अच्छा 20% टूट गया। दूसरे भक्त किसी बोला, उसने 5% और ऐड करके बोलते 25% माल खराब आया। हाँ, वो बात उड़ते उड़ते 40%, 50%, बात उड़ते उड़ते इतनी पहुंच गई कि
एक बहुत सी सीनियर भक्त ने जो दूसरे से चर्चा करे तो बोले थे आपको मालूम है 90% मार्बल जो है वो टूटा हुआ है। मैं वहीं पे प्रसाद ले रहा था, मेरे से अंदर निकला नहीं गया। मैंने कहा प्रभु जी आपने वाकई ग्राउंड रियलिटी में पता किया कितना परसेंट? बोलिए मैंने उसे सुना था। मैंने कहा सुना है तो चल गया, आप वाकई जाकर के देखिए। कुछ कंफ्यूजन गुरु माँ से पूछ ली थी, गुरु माँ से तो ट्रस्ट करते हैं, हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो वो राधा पात्र का क्या मोटिवेशन रहेगा जब पूरे मंदिर में लोग बोले कि गुरु महाराज का इसने पूरा पैसा नष्ट कर दिया, 90% मार्बल टूटा हुआ है। वो तो बेचारा आदमी सेवा ही नहीं कर पाएगा अगली बार। तो दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमर। एक व्यक्ति तो बोलता हमने थोड़ा सा ही ऐड करके बोला या थोड़ा, परंतु दैट रियली डिटेरियोरेट द थिंग। अच्छा हुआ ये चीज राधा पात्रों के कान में नहीं पड़ी, नहीं तो उनका तो सर्विस एटीट्यूड ही उसी दिन ड्राई हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। सो इट हैपेंस लाइक, एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, लेक्चर में सुनी थी, either we are increasing the appreciation of others or we are decreasing their appreciation for Krishna consciousness by our acts and conducts। हम या तो किसी की सराहना, किसी का फेथ बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं या घटाने का कार्य कर रहे हैं। स्टार्टिंग तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। इस प्रकार से वी शुड थिंक हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, हम कैसे इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई बोलता है हाँ हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कोई सोच सकता है हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं, हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? जस्ट बाय एक्टिंग लाइक अ प्रॉपर सदाचारी वैष्णव और वैष्णवी वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द मूवमेंट। एक्चुअली हम अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करते हुए बहुत कुछ इस मूवमेंट को दे सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, तो जैसे फोर्थ कैंटो में आते हैं कि जिस समय उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लिया था, इतने भारी हो गए थे कि पृथ्वी ही नहीं संभाल पा रही थी। दैट इज द पावर ऑफ having Krishna or realizing Krishna in one's heart. One pure devotee is able to do so much. Sril Gaur Keshor Das Babaji Maharaj ने active preaching नहीं की, but Sril Bhakti Siddhant Saraswati Thakur used to say that whatever I am preaching is because of the pure chanting of my spiritual master. It is his mercy, it is his blessing, because of which I am becoming the instrument and my words are able to pierce the heart of conditioned soul. So that one pure heart can do a lot. So in that way, we should always know what our area of influence is, what our area of concern is. Our area of influence is we can work on our shortcomings, on deleting our anarthas, and in that way, we can convert our heart into a golden heart. The heart which is filled with humility, tolerance, and gratitude is the golden heart. The heart which is filled with anarthas is not the golden heart. So in that way, moving from corruption to purity. Moving from corrupted heart to pure heart. What kind of preaching a pure heart can do, and a normal heart cannot even imagine like that. Because spiritual inspiration is something beyond someone's jurisdiction, beyond someone's imagination. That is the power of purification. Srila Radhanath Swami Maharaj, he is not a college graduate. He has not gone to the college, but hundreds of IITians are Maharaj's disciples because of one pure heart. Srila Prabhupada was not so physically attractive, but people left their beautiful girlfriends. The youths left their beautiful girlfriends in order to follow Srila Prabhupada. That is the beauty of purity. So that is the thing. Okay, Gaurav Prabhu. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु अभी आपने से बात की थी रूमर्स को लेकर के, तो कुछ दिन पहले हमारी क्लास थी जिसमें ये डिस्कशन महाराज ने बताया था कि डिवोटीज जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसमें हमें फेथ रखना चाहिए, राइट। अभी जहाँ पे आपने बताया कि रूमर्स के बारे में, तो अब जो कोई हमें चीज बता रहा है तो हम क्या समझे, उसको फेथ करें या उसको रूमर समझे, या हमें कंफर्म करने की रिक्वायरमेंट है? हाउ कैन वी टेक दिस कि जो डिवोटीज बोल रहे हैं हमें फेथ करना चाहिए, तो फिर व्हाट द नीड ऑफ टू अगेन कंफर्म दिस कंक्लूजन कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? प्लीज क्लैरिफाई फॉर मी। हरे कृष्णा। या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें भी कई स्टेजेस में बात होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई व्यक्ति एकदम नया रहता है, तो वो अभी एकदम नया है तो एकदम से फेथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिससे सुन रहा है उसके ऊपर भी उसकी भी एक्टिविटीज उसको मालूम नहीं, उसके ऊपर भी इतना फेथ नहीं आया है, और साथ ही साथ में वो कोई गुरु साधु शास्त्र की बात भी नहीं जानता है।
So in that way, basically, it will be difficult for a newcomer to directly trust on the preacher. ये जो लोग नए रहते हैं भक्ति में, उनको हम कभी नहीं बोलते कि you just accept whatever we say. You don't have, हम तो बोलते हैं spirituality is not a blind faith, but it's an intelligent doubt. तो इस माध्यम में हम हमारे पास में ओपन माइंडेड लोग आएंगे कम से कम. After spending some time, say we have spent few months and few years, अभी हम जाकर के एक व्यक्ति पे विश्वास करना सीख गए हैं. स्क्रिप्चरल इंजंक्शन है कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही गुरु नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसे ही किसी से दीक्षा नहीं लेना चाहिए. स्क्रिप्चरल इंजंक्शन है, व्यक्ति को बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, बहुत अच्छे से टटोल के देख लेना चाहिए कि वाकई क्या ये व्यक्ति सही स्पिरिचुअलिस्ट है, क्या वाकई ये व्यक्ति मेरे गुरु बनने के लायक है, या क्या मैं इसके शिष्य बनने के लायक हूँ. इतना एनालिसिस करना जरूरी है. पर एक बार आपने गुरु एक्सेप्ट कर लिया एनालिसिस के बाद, उसके बाद फिर देन यू नीड टू सरेंडर, बिकॉज तद विद्धि पाणी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवया. देखते ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्व दर्शनम. तो one should submissively have inquiries, one should render services to that person. Then the self-realized soul will impart the truth, because he has got this spiritual realization with him. So in that way it works. So if we are new in Krishna consciousness, we can't have blind faith, but we can accept the reasons and analogies which the preacher is presenting. जैसे शुरुआत में बेसिक सेशंस हम लोग बोलते हैं कि we are getting so much of resources from the nature. So should we not be grateful towards it? Should we not be grateful towards God? अभी हम खा लेते हैं, उसके बाद तो कैसे क्या पचता है हमको पता नहीं, अंदर जाकर के कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है हमको पता नहीं. So who is basically operating these things? So in that way we go in a very logical way. How the water is evaporated in the form of clouds, and then how the clouds gives rain, and then how that rainwater is collected by the ground, and then how we are able to get that water. So in that way, by recognizing the beautiful intellectual arrangement in the nature, we should be faithful towards nature, faithful towards God, and be grateful. So that is called faith development sessions we take. If a person is new in Krishna consciousness, he is always having the right to doubt. But if a person is quite old, if a person is hearing from a saint, and if he is also sticking with the Guru, Sadhu, and Shastra, then basically he should be accepted. If we have any doubt, we always have question answer session at the end. At least in ISKCON classes, we always have question answer session at the end. One is always asked if anything is not understood, if any conclusions, if any questions, confusions, contradictions, they can always come up and they can always clarify. So in that way, we can always clarify the things. So in that way, we will never feel cheated, and we will move ahead with solid faith, solid foundation. Or ekdam from shaking faith to steady conviction, we will be moving in. So that will be good. Does it answer your question, Gaurav Prabhu? Prabhu, still not clear. I will discuss later on with you. Yeah, you can ask like which part. I can even add something more in that. Actually, Prabhu, जैसे आपने बताया कि with a spiritual master, but right now we don't have a spiritual master. We have a devotees or a शिक्षा guru as well. तो अब उसमें हम कैसे इस चीज को जो परिपातेन सेवया, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें यहाँ तो जो सीनियर जो भी हमारे भी सीनियर डिवोटीज हैं, इट सीम्स लाइक आल्सो गुरु फॉर अस. तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट जो हमें वो बता रहे हैं वो उन्होंने उनका खुद का है या वो कहीं से कंफर्म करके बता रहे हैं कि रूमर्स हैं? यस, वी शुड यूज इंटेलिजेंस, बट व्हाट लेवल वी हैव टू. So every time I have doubt on the devotees, this is also not good. Every time I have faith, this is also not good as your explanations. तो अब उसको बीच में हम कैसे उसको रखें और भक्ति में आगे बढ़ सकें और नेवर फील चीटेड लाइक दैट. तो ये जैसे फीलिंग ना आए हमारे अंदर. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर डीपली इन दिस पॉइंट. इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, दूसरा है मैनेजरियल एस्पेक्ट. तो दोनों प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं. जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसमें अगर कोई काउंसलर है या शिक्षा गुरु है वो बात करेंगे कैसे हमको रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग इस फील्ड्स में चर्चाएं होंगी. मैनेजरियल एस्पेक्ट है उसमें प्रोग्राम्स को रिलेटेड, प्रीचिंग को रिलेटेड, प्रीचिंग प्रोजेक्ट्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटेड चर्चाएं हो सकती हैं.
मैनेजरियल एस्पेक्ट है, डेफिनेटली व्यक्ति सही भी हो सकता है जो बोल रहा है, तो कुछ मैनेजरियल फ्लॉज भी हो सकते हैं। चौपाटी में लोग बोलते हैं पीपल लव गौरांग प्रभु, बट दे हैव मैनेजरियल differences. So in that way, managerial differences are always there. That cannot be, we cannot eliminate that part. So in that way, you have to see like spiritual जो चीजें बताई जा रही हैं उनमें कुछ confusion है, या मैनेजरियल जो इंस्ट्रक्शंस है उनमें कंफ्यूजन है। मैनेजरियल है तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। अभी हमको भी श्री भक्ति प्रिय महाराज कोई चीज बताते हैं कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, ऐसा ऐसा आयोजन होना चाहिए, तो हमारे भी दिमाग को इसमें लगाना पड़ता है कि नहीं नहीं महाराज इससे तो क्राउड फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। अभी सीधी सीधी बात अगर मान लेंगे और गेट में 1000 लोग आकर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको भी हमको ही निकालना है। So in that way, we always have cross questioning. We always have differences of opinion. We always change whatever Maharaj plans. Maharaj suggests some plan. If there's any flaw in that, we have to openly discuss, and we have to sometimes go against the will. These things happens when it is managerial, but when it is spiritual, 90% of the times we don't have much doubt, much difficulties, because that is more or less basically is in line with Guru Sadhu and Shastra. वहां पे फिर इतना कंफ्यूजन नहीं आता। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो फिर उन्हीं के समकक्ष जो वैष्णव हैं उनसे हम लोग जाकर के चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे मंदिर में अनुराग प्रभु हैं, अनिरुद्ध प्रभु हैं, ये महाराज के ही समकक्ष हैं। ये लोग भी 1990s में ज्वाइन किए हुए हैं। So ये we can always openly discuss something, some confusions which we have, and we can always cross check. तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि it's a lack of surrender because of which we are just unable to just act as a puppet. It's not possible as well. Practical रहना बहुत जरूरी है। कहीं भी कुछ डाउट होगा तो उसको हमको क्लियर करनी पड़ेगा। डाउट्स आर लाइक डेमन्स। अब जैसे मेरा पूरा शरीर ठीक है, पर केवल एक उंगली का ये वाला नाखून जो है वो उसमें दर्द है, वो नेल कटर से काटते टाइम ज्यादा कट गया, तो पूरा फोकस दिन भर जो है वो इसी उंगली किसी नाखून में आकर के अटकता रहेगा बार बार। पूरा बॉडी तो सही है, उससे मतलब नहीं, वो यहीं पे आकर के कॉन्शियसनेस बार बार में अटकेगी। करेक्ट। सो इन दैट वे इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलें, ताकि हम एक हेल्दी वैष्णव रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे चलें, एंड दैट विल बी ग्लोरियस। थैंक यू। Thank you, Prabhu. Thank you. Now clear. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Just want to some clarification and some suggestions also कि कभी-कभी हमारे साथ क्या होता है, जैसे हम conclusion की बात कर रहे थे, कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी devotee से कुछ interactions करते हैं, and after 2-3 interactions हम कुछ observe करते हैं और एक conclusion बना लेते हैं कि हाँ ये इस situation में ऐसे करते हैं, या this is what they have, their nature may be related to something else. So उससे क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम में भी 4th-5th टाइम जब हम उस डिवोटी से मिलते हैं जो कुछ भी बोलता है तो हम एकदम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। सो हाउ टू रेक्टिफाई दैट नेचर, बिकॉज कभी-कभी उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि हम उस कंक्लूजन की वजह से कुछ उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में कुछ ऑब्जर्व किया है एंड उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि ये that maybe the particular devotee nature is there or maybe something else is there, जिसकी वजह से एक फ्यूचर में हमें कंक्लूजन डायरेक्टली जंप ऑन टू कंक्लूजन, ओ ये डिवोटी ने तो ऐसा इसलिए ही किया होगा। सो दैट हाउ टू रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू डिस्कस। या इसमें ये देखना पड़ेगा हमको कि एक्चुअली इसमें आएगा कि हमारे सभी के सेंसर्स हमेशा ही ऑन है। हम जब भी किसी को देखते तो हमारे सेंसर्स जो है वो उनकी एक्टिविटीज को लेकर के रजिस्टर करते रहते हैं, उनके बिहेवियर्स को। करेक्ट। तो इसमें बेसिकली मैं जो बात कर रहा था आज के सेशन में, जैसे श्रील भक्ति प्रिय महाराज डेली बेसिस पे मंगल आरती में आते हैं। करेक्ट। अभी किसी दिन अगर वो मंगल आरती में नहीं आते हैं तो जो सकारात्मक दृष्टिकोण के लोग वो क्या सोचते हैं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम रही होगी या कुछ ना कुछ रीजंस रहा होगा, इस कारण से महाराज जो है नहीं आए हैं। करेक्ट। दैट इज अ पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। कुछ लोग जो नेगेटिव माइंडसेट से बोलते हैं, देखा आज महाराज नहीं आए ना, आखिर आज तो महाराज ने भी छुट्टी मार दी ना। ऐसा होता है, मतलब कि कभी कभी लोगों को रेस्ट चाहिए पड़ता है, महाराज को भी कभी कभी रेस्ट चाहिए पड़ता है, इसलिए आज वो नहीं आए करके। सो इन दैट वे दे थिंक। Correct. This is something which we wanted to eradicate and we try to discuss about that. अब अभी क्या है कि in general devotees have both. Devotees have their brighter side and they have their darker side as well, because we all are here because we have some darker side. Correct.
हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम उनके ब्राइटर साइड को भी देखते हैं, उनके डार्कर साइड को भी देखते हैं। जब हम रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स उनके डार्कर साइड को देखते हैं तो हमारे भी परसेप्शंस बनना शुरू हो जाते हैं उनको लेकर के, जो कि गलत भी नहीं है और जो कि अवॉइडेबल भी नहीं है। इट्स कंप्लीटली अनअवॉइडेबल बिकॉज पीपल हैव देयर डिफरेंट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी। कुछ कम सेंसिटिव है, कुछ ज्यादा सेंसिटिव है, तो उस टाइम में हमारे परसेप्शंस बन जाते हैं। तो उन परसेप्शंस में कभी-कभार क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कभी गलत किया नहीं भी रहता तो भी हमको लगता है कि इसने तो इस प्रकार से गलत किया ही होगा करके, करेक्ट? छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तो ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है तो क्लैरिफाई करना बेटर है रादर देन कंक्लूजन। और इन परसेप्शंस को भी हम पूरे से तोड़ नहीं सकते क्योंकि परसेप्शंस बनाए बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। कोई वक्त जैसे उसकी सेंसिटिविटी कमी है तो हम जानते हैं इसको ज्यादा कोई सेंसिटिव एरिया की सर्विसेज देंगे तो सर्विसेज में गड़बड़ी कर देगा। तो अनलेस वी हैव दैट परसेप्शन इवन वी वोंट बी एबल टू जस्टिफाई द सर्विसेज प्रॉपर्ली। कोई व्यक्ति जो है वो गेस्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं तो हम उनको गेस्ट केयर में डालते हैं ताकि ये दे विल बिहेव नाइसली विद द गेस्ट एंड आवर गेस्ट्स विल हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में कुछ गड़बड़ी भी वो करते हैं तो हम उनको जो है वो बेनिफिट और डाउट दे देते हैं कि हो सकता है कि सिंस ही इज परफॉर्मिंग 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स गुड, हो सकता है एक बार कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जिस कारण से ये इन्होंने ऐसा कुछ किया। Otherwise, we keep on registering the perceptions and we have to act people on the basis of perceptions. But just थोड़ा सा एक benefit और doubt का एक थोड़ा सा element हम अपने mind में लेकर के चल सकते हैं ताकि किसी भक्त ने कभी कोई गलत चीज या कुछ बड़ी चीज की हो एकदम हम डायरेक्टली कंक्लूड ना करते हुए थोड़ा सा स्पेस वहां पे छोड़ करके अगर हम खुद प्रभावित हो रहे हैं तो उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक इवन आई कैन नॉट रिमूव दिस थिंग कि लोगों के बारे में परसेप्शन ही क्रिएट ना करें। अब कोई व्यक्ति सपोज कीजिए रोज ही चैंटिंग में सोता है, डेली बेसिस पे ही सोता है सोते सोते जब करता है, अभी मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा उसमें कि बेसिकली तो योग माया के अंदर चल रहा है, ये तो कृष्ण के योग माया के अंदर चीजें चल रही। तो बेसिकली we have to think okay this is his weak area, he has several other good areas as well and I should respect him on the basis of this good area, and if I can help him out in recovering his doziness while japa I will do, otherwise like let it be between him and Krishna. So that will be one of the mature way of responding to the situation. Thank you so much. Basically, Prabhuji, we need to train ourselves for all these things. Yeah, That lot is of it. training is required actually, lot of training. Because from maybe I can say from my childhood I've trained my mind to be jump on conclusion immediately. So with that we have to just go erase karna and then redo karna. Jumping into positive conclusions is less dangerous. क्यों? जैसे कोई अब जैसे क्या होता है कि डिवोटी कम्युनिटी में क्या when we see that we are someone is having wrong perceptions about us ना, then it becomes very painful. जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, प्रचार कर रहा है, परंतु उसके प्रीचिंग के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और किसी सीनियर ने कंक्लूड कर लिया कि ये व्यक्ति जो है ढंग से प्रीचिंग नहीं करता या ढंग से प्रचार नहीं करता है, then becomes very very painful for that preacher. अरे मैं तो इतना मतलब 3 टाइम प्रसाद लेते हैं, मैं तो एक ही टाइम प्रसाद लेता हूँ, मैं इतना सैक्रिफाइस करता हूँ और अथॉरिटीज हमारे बारे में ऐसा सोचती हैं कि जैसे हम कुछ करते ही नहीं है कुछ, then becomes very very painful. So especially when we are senior, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो अगर चिल्ड्रन को लेकर के कंक्लूजन में जाते हैं, जंप करते हैं, इट बेसिकली ब्रेक्स द हार्ट ऑफ चाइल्ड. So the senior position we are in, the more mature we need to respond. Otherwise, very difficult. Thank you so much, प्रभु Prabhuji. ने हैंड रेज किया है, गौरव प्रभु. Hare Krishna, Prabhu. There are two questions, one clarification and one question is that प्रभु जैसे आपने एग्जांपल लिया था महाराज का कि जैसे महाराज किसी बार मंगला आरती में नहीं आए, देन डिवोटीज आर कि आज उन्होंने छुट्टी ले ली है, तो कुछ डिवोटी ये भी सोच सकते हैं कि शायद आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद इसलिए नहीं आए हैं. तो माय पॉइंट इज दैट कि टुवर्ड लव द अदर डिवोटीज can we convert into the positive conclusion? Am I right, Prabhu? The scripture says there's no loss in converting into a positive conclusion. Suppose कीजिए कि आउट ऑफ कंफ्यूजन कोई व्यक्ति पॉजिटिव कंक्लूजन पे जंप कर रहा है तो इससे उसकी कोई हानि नहीं होने वाली है, पर नेगेटिव में जंप करेगा तो बहुत बहुत हानि हो जाएगी. Positive conclusion. जंप करेगा तो
पॉजिटिव में देखिए हो सकता है कभी हम पॉजिटिव में जंप किया जो कि पॉजिटिव गलत भी हो, देन आल्सो इट वोंट हैव सो मच ऑफ साइड इफेक्ट्स as compared to it can have a bad effects when you are jumping into a negative conclusion. बल्कि बल्कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो तो पॉजिटिव कंक्लूजन्स पे ही जाते हैं, करेक्ट? अभी कभी हम चर्चा करेंगे तो उसमें साधु असाधुतर असाधुतम अति असाधुतम, ये 4 लेवल के ये लोग रहते हैं कि महत्तर महत्तम अति महत्तम, ये 4 लेवल पे साधु से और 4 लेवल पे असाधु से। महत क्या सोचता है कि दिस पर्सन हैविंग गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिज बैड क्वालिटीज विल बी रिमूव्ड एंड गुड क्वालिटीज विल इंक्रीज, दैट इज द विजन ऑफ अ महत। महत्तर क्या सोचता है, महत्तर ज्यादातर बुरा दिख ही नहीं पाता, ज्यादातर अच्छी क्वालिटीज पे ही फोकस करता है। महत्तर महत्तम क्या करता है, कोई छोटा सा कुछ अच्छी कोई लक्षण देख करके उसको भी बहुत बहुत ग्लोरीफाई बहुत बहुत ब्रॉडकास्ट कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। अति महत्तम तो क्या सोचता है, वो बेसिकली वो सोचता है कि मैं ही असाधु हूँ, बाकी सब साधु हैं, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इस प्रकार से। सो दैट इज महत्तर महत्तम अति महत्तम। असाधु कैसे सोचता है, असाधु सोचता है कि इस व्यक्ति की अच्छी क्वालिटी भी है खराब क्वालिटी भी है, मैं पर जानता हूँ धीरे धीरे इसकी अच्छी क्वालिटी सब चली जाएंगी, खाली खराब खराब बचेंगी। दैट इज द विजन ऑफ असाधु। असाधुतर वैसे उल्टा सोचता है, जैसा जैसा महत से महत्तर था उसका रिवर्स है। तो इस प्रकार से हमारे स्क्रिप्चर्स में डिस्क्रिप्शन है। Okay, so it's 8:29 now. So we can wind up today's session. If you have any suggestions for any topics, you can personally give me suggestions. So sometimes I can bring them up in one of these sessions. अभी तो 3-4 सेशंस हमारे और भी होंगे, तो उसमें हम ये इन टॉपिक्स को ला सकते हैं, कुछ पार्ट इसका इंक्लूड कर सकते हैं। So that's all I had to share with you all for today. Just एक last point, मैं नरसिंह देव अल्टर में बैठा बैठा सोच रहा था कि how fortunate I am that Lord Narsingh Dev is allowing me to worship him. Even Lord Brahma appreciates the worship of Lord Narsingh Dev, and such a supreme personality of Godhead is allowing me in the month of Damodar. So I was just thinking that with what consciousness we should do spiritual activities, and because the formula for spiritual realization is spiritual activity multiplied by faith component, directly proportional to spiritual realization. Spiritual activity we all are performing, but that faith component is different in different cases. That's why the result will be different in different cases. Everyone is chanting 16 rounds, okay, multiplied by faith component. Faith component is different, and spiritual realizations will be different. So I was just thinking that suppose if I continue to live for 70 years, I don't know how much I will live. Suppose if I continue to live for 70 years, right now I am 35. 35 more years if I live. So in the coming 35 years, I will be able to chant 35 crore names of Krishna. एक साल में कोई व्यक्ति अगर 16 माला का जप करता है तो वो 1 करोड़ हरिनाम ले लेता है ना। 16 names multiplied by 108 beats multiplied by 16 multiplied by 365, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक साल में एक व्यक्ति 1 करोड़ हरिनाम ले लेता है। तो अगले 35 साल तक अगर मैं और जीवित रहता हूँ, जैसे कि मेरी हस्तरेखा कहती काफी लंबी है, अगले 35 साल में मैं 35 करोड़ हरिनाम ले पाऊंगा। तो क्या अगले 35 करोड़ हरिनाम मैं इसी चेतना के साथ लेना चाहता हूँ जिस चेतना के साथ मैं आज लेता हूँ? डेफिनेटली नहीं, मैं तो अच्छी चेतना में लेना चाहता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं डीटीज की वर्शिप अगर कंटिन्यू करता हूँ तो अगले 35 साल में मोटा मोटी करीब करीब मैं 18,000 बार डीटी वर्शिप कर चुका हूँ। तो क्या ये 18,000 टाइम्स जो डीटीज की वर्शिपिंग है, क्या मैं इसी कॉन्शियसनेस में करना चाहता हूँ? आंसर आता है ना, आई वांट टू डू दिस बेटर कॉन्शियसनेस। अगले 35 सालों में आई विल बी एबल टू अटेंड 12,500 मंगल आरतीज. Do I wish to attend this with this consciousness? No. The answer, the heart says, I want to attend this with a better consciousness. अगले 35 सालों में मैं 875 एकादशी का पालन करने वाला हूँ। तो क्या मैं इन एकादशी को ऐसे ही पालन करने वाला हूँ जैसा मैंने पिछली एकादशी को किया था? No, I want to fast with a better consciousness.
अगले 35 साल में मैं करीब अगर इसी रेट से चला तो करीब मैं 17-18 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ चुका हूँ। तो क्या मैं इसी चेतना के साथ में 17-18 बार भागवतम पढ़ना चाहता हूँ जैसा अभी मैं पढ़ता हूँ? नो, आई वांट टू गो डीपर एंड डीपर इन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। इसी चेतना के साथ में गायकी, वैष्णवों की, गुरुजनों की सेवा में करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आई वांट टू डू इट बेटर, सो आई हैव अ लॉट टू अचीव, अ लॉट टू डू, but depending upon the quality of consciousness, I will be able to explore more and more spiritual truths. So why not to start the game now? So let's start today with a good consciousness. अभी हम 2030 में जब सेम क्लास ले रहे हो, सेम आमने सामने हो, so we will come up with a better, fresh, juicy realizations in our heart. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Prabhuji, one last question. The last formula which you told, can you repeat it again? Can you please repeat? Spiritual activity performed multiplied by faith component is directly proportional to spiritual realization. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. A lot of number crunching in the end. So obviously हमारे पास दो we are over time, but हम लोग भी प्रभु जी के लिए एक बार अच्छी consciousness से हरे कृष्णा कह सकते हैं. So let's sing Hare Krishna महामंत्र. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol. Thank you so much, Prabhuji, for joining and giving us your association. Thank you Hare very much. Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.